جو سوال جو آپ کیے اس کے اندر مجھے نہیں پتا کہ باقی لوگ کیوں اس کو اوائڈ کر رہے ہیں، کیونکہ اس میں کوئی چھپانے کی چیز ہے نہیں. اور اعظم خان صاحب کے تعلق سے بات کی تو اعظم خان جھنڈا آنے سے پہلے، لیکن اعظم خان صاحب کو جتنا میں جانتا ہوں وہ پاور ہنگری ہو سکتے ہیں، وہ انفلوئنشل ہو سکتے ہیں، وہ انفلوئنس ریلیٹڈ ہو سکتے ہیں، ان کا ایٹیٹیوڈ ہو سکتا ہے، لیکن کہ وہ ان کی پیسے کی لین دین میں وہ کہیں شامل ہوں گے تو میرے لیے مشکل کام. وہ پیسے میں انوالو ہوں گے. میرے حساب سے اعظم خان صاحب کی پیسے کی انوالومنٹ نہیں نظر آ رہی. لیکن شہزاد اکبر صاحب اور کابینہ کو کانفرنس میں لیا اور کابینہ کے اندر کوئی اس پہ ڈیبیٹ نہیں ہوئی، کوئی ڈیٹیل ڈسکشن نہیں ہوا، اس پہ کوئی کاغذات پریزنٹ نہیں ہوئے، اور یہ پھر ایک ملک کے سر کے اوپر رکھ کے کہانی دی گئی. اور میرا یہ بھی ماننا ہے کہ جس طرح ہمیں کہانی سنائی گئی تھی اس وقت عمران خان صاحب کو بھی اسی وقت سنائی گئی، اور باقی جیسے مطمئن ہوئے لوگ ویسے ہی وہ بھی مطمئن ہوئے. اور کیبنٹ کا فیصلہ میجورٹی کے اوپر ہوتا ہے، تو کوئی کیبنٹ میں چیز سائن نہیں ہوتی، کیبنٹ اپروول ہوتا ہے. تو میجورٹی نے جو اپروول دیا اس اپروول کے تحت ہم بھی اس میں شامل تھے. اگر آج آپ مجھ سے سوال کریں گے اس وقت کے تحت بھی اور آج کے تحت بھی، تو میرا سوال یہی ہے، ایک غلط کام کابینہ سے کروایا گیا، اور اب کیونکہ شہزاد اکبر صاحب یہاں موجود نہیں ہیں، اور یہ بات کابینہ کے اندر ہی میں نے میٹنگ پر ٹرسٹ نہ کریں، اور آج بھی وہی کام کر رہا ہوں اور آگے بھی وہی کرتا رہوں گا. لیکن اگر آپ اس سے ٹیکنیکلٹیز کے اندر پوری کو پاکستانی گورنمنٹ کو، پاکستان کے خزانے کو 190 ملین پاؤنڈ کا نقصان ہوا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہونی چاہیے. اور یہی وہ تھی. اور میں نے پھر ان سے پرانے چیئرمین کی ویڈیو لیک کو اگر انویسٹیگیٹ کر لیتی نیب تو یہ بڑے آسان ہوتے کیسز سالو کرنا. تو میرے خیال سے میں نے بریکٹس بہت کچھ کہہ دیے. کوئی سوال ہے آپ لوگ؟ دیکھیے جی، میں کچھ ہفتوں پہلے چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین سے میری مہینوں پہلے ملاقات ہوئی تھی، اور میں نے ان کو اس وقت بھی کہا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو ضرور بنایا چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین، لیکن آپ عمران خان صاحب کے مرہون منت تھے، اور ایک خاص بیساکھیوں پر، مصنوعی بیساکھیوں پہ آپ کھڑے ہیں. تو میں نے تو اپنا ٹارگٹ وہیں لاک کر دیا تھا، فائر ابھی کی ہے. اور ابھی ایک اور آئینی عہدہ ہے جو ایک سازش کے تحت استعمال ہو رہا ہے، اور عمران خان صاحب کو شاید اس کا علم نہیں ہے کیونکہ وہ بہت بھروسہ کرتے ہیں. تو ادھر بھی میں نے ٹارگٹ سیٹ کیا، ابھی لاک کرنا اور فائر کرنا باقی ہے. تو صاحب یہ بتا دیں کہ جو شہزاد اکبر صاحب کو بڑے پیاز کو 90 ملین پاؤنڈ کا فائدہ دیا، اس میں عمران خان کو کیا فائدہ ہوا اور شہزاد اکبر کو کیا فائدہ ہوا؟ دیکھیں جی، جس کمپنی کا وہ کاروباری شخصیت ہے اور میں بھی کاروباری ہوں. اگر مجھے 100 روپے کا فائدہ ہوگا تو میں 5-10 روپے تو دوں گا نہ میں مفت میں کسی کا روادار ہوں، نہ کوئی مفت میں میرے لیے کام کرے گا. تو شہزاد اکبر کے کیس کے اندر تو کوئی پے آرڈر تو ہے نہیں، نہ قتل کی ویڈیو ہوتی ہے. اس ملک کا عجیب المیہ ہے کہ کہتے ہیں کہ رشوت کو ثابت کر دو. بھائی جب وہ اس ملک کے اندر تھا کیوں جانے دیا اس کو؟ جب آپ کو میں نے ایز اے وزیر اعظم، ایز اے چیئرمین یہ بھی بتایا، کابینہ کے اندر بتایا کہ یہ ملک سے نکل جائے گا، تب بھی کوئی جھوٹ نہیں روکی. فیصل صاحب ابھی آپ پیشی سے ہو کے آئے ہیں، تو عام طور پر نیب کی پیشی سے لوگ بڑی پریشانی کے حالت میں باہر نکلتے ہیں، آپ مسکراتے آ رہے تھے. اور دوسرا اسی کے ساتھ یہ بھی بتا کے ساتھ آپ نے عمران خان کے اگینسٹ وعدہ معاف گواہ بننے کا ارادہ کیا ہے یا انہیں گواہی دینے کا وعدہ کیا نیب سے؟ دیکھیں، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ایک بڑا اچھا سوال کیا. نیب کے اندر آنے سے وہ لوگ گھبراتے ہیں اور پریشان ہوتے ہیں جن کے دامن پہ داغ ہو. اگر آپ نے 2 روپے ایک سرکاری 20 کروڑ روپے کی بیچ دی ہے تو پھر آپ کو ڈرنا بھی چاہیے. نہ تو میں وعدہ گواہ بننے آیا ہوں، نہ میں وعدہ گواہ عمران خان صاحب کے خلاف تھا، نہ میں عمران خان صاحب کے خلاف ہوں، نہ عمران خان کے خلاف ہوں گا. لیکن ان کے ارد گرد سازشی سانپ، خاص کیڑے، شاید اللہ میاں نے، میری کوئی حیثیت تو نہیں ہے لیکن
अगले इलेक्शन तक उन सब की पॉलिटिकल सफाई के अंदर मेरा बहुत बड़ा हाथ होगा, किरदार होगा इंशाल्लाह। फैसल साहब ये बताइएगा कि जब आप ये बात करते हैं कि जी काबीना के अंदर भी आपने आवाज़ उठाई, उन्होंने भी आवाज़ उठाई, इमरान खान क्या इतने मासूम हैं कि वो उनको कुछ भी पता नहीं चलता और वो ये सारे कहते हैं ये घड़ी का मामला भी ऐसे ही हो गया, ये सारी चीज़ें वो इतने मासूम हैं? देखिए, इमरान खान साहब का आप इसको उनकी स्ट्रेंथ कह लें या उनकी वीकनेस कह लें, इमरान खान साहब अपने लोगों के ऊपर और बेजा भरोसा तो आजकल के हालात में आप अपनी औलाद पे भी नहीं कर सकते। और दूसरा ये कि क्योंकि शहजाद अकबर साहब की बात में वेटेज इसलिए था कि शहजाद अकबर साहब बेस्ट फ्रेंड थे आज़म खान के, और IBB उस टाइम की वही रिपोर्ट करती थी जो शहजाद अकबर साहब, आज़म खान, दीगर एजेंसियाँ भी उस टाइम की। तो एक इंसानी फितरत है, आप सारे इतने सारे लोग खड़े हैं, अगर आप ये मुझे सारे के सारे कहेंगे ग्रेट, तो मैं इंसान हूँ, मैं ये सोचूंगा कि शायद मैं गलत देख रहा हूँ या मुझसे कोई मिस्टेक हुई है। तो मैं इमरान खान साहब को ज़रूर ये बेनिफिट दूंगा कि वो भरोसा करते रहे और वो भरोसे के अंदर लॉबीज प्ले करती रही अपने अपने इंटरेस्ट के लिए। 11-12 बजे भी वही बात की, दूसरे आदमी ने 2 बजे भी वही बात की, 6 बजे भी बात की, IBB ने रिपोर्ट भी वही पेश कर दी, किसी और एजेंसी ने भी वही रिपोर्ट पेश कर दी। तो कोई इंसान यकीन ताकत तो लेके इंसान आया बनी है। अच्छा, आपने एक बात की कि आपने कहा था कि मैं बहुत जल्द दिनों में हक़ाइक़ सामने लेके आऊँगा, एक तो उसमें भी आपको पेश बता दें, और दूसरा 2 ख़ास और 3 बात सामने लेके आएंगे। देखिए जी, मैं बड़ी हिकमत, बड़ी जिम्मेदारी और बड़ी तसल्ली से रोक के बैठा हूँ। इससे पहले तो पाकिस्तान और बैरून मुल्क वाले भी सो रहे थे जब अरशद शरीफ साहब का कत्ल हुआ। एक स्टोरी आई कि जी रैंडम पुलिस ने चेक किया, शनाख्त नहीं थी, गोली चल गई, गोली लग गई और उनका इंतकाल हो गया। तो लोगों ने मुझे बहुत कुछ कहा कि जी मैंने किसी के कहने पे कर दिया है। तो मैंने कहा क्या था, मैंने 2 बातें कही थी। मैंने कहा कत्ल क्लोज रेंज से मारा गया है, या गाड़ी से उतार के या गाड़ी में बैठ के मारा है, ड्राइवर की इन्वॉल्वमेंट है, मंसूबा पाकिस्तान में बना है, और ये जो मार्च होने वाला है ये खूनी मार्च होगा। गलत क्या कहा, और वो सब कुछ हो गया। तो अगर मैंने एक सही काम किया और मुझे ट्रोल कर रहे हैं तो मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। उससे पहले तो ये ओपन एंड शट केस था। देखिए, मेरे बहुत सारे यहाँ मुखालिफ आयात भी रही है उनके साथ एज जर्नलिज्म, लेकिन कुछ जगहों पर प्रिंसिपली जब ठीक इंसान है, आपके साथ भी मेरा तजुर्बा ऐसे ही था, लेकिन आज मैं आपकी बहुत ज़्यादा इज्जत करता हूँ, सबकी करता हूँ, लेकिन इनकी करता हूँ। मेरी मुखालफत थी। मुखालफत होना, डिफरेंट रखना, क्रिटिसाइज करना इज नो प्रॉब्लम, लेकिन आप किसी को ओपन एंड शट केस में, मेरा उसके साथ 10 साल का ताल्लुकात था। और जब मैं ताल्लुकात की बात कर रहा हूँ तो मैं कोई बेसलेस बात नहीं कर रहा। जब ज़रूरत पड़ेगी तो 2 खास, 3 सांप और कीड़ों का जिक्र आएगा, और मैं अगर काम कर रहा हूँ और वो फिर उस स्टेज तक नहीं रोक सका तो मैं बहुत देर से रुकने वाला नहीं हूँ। फिर अगर मैंने अपने गद्दे पे लेना है तो मैं आ जाऊँगा सामने। सर, जो आपकी इन्फॉर्मेशन थी उसके मुताबिक ही फायरिंग हुई, खान साहब को गोलियां भी लगी। अब मजीद आपकी इन्फॉर्मेशन क्या कहती है, मार्च में और क्या क्या होने वाले हैं, किस किस को गोलियां लगने? देखिए जी, सबसे पहले तो आपको इमरान खान साहब को अल्लाह ताला ने ये पॉपुलैरिटी उस लेवल की दी हुई है और इज़्ज़त दी है, और राइटली सो दी है, कि एक तो इमरान खान साहब का मुकाबला, और ये अल्लाह ताला ने ज़मीन आसमान का फ़र्क रखा हुआ है। एक इमरान खान साहब की मोहब्बत है जिसमें लोग उनके साथ खड़े हुए, PDM की नफरत है जो उनके साथ खड़े हैं। आपको नज़र आ रहा है कि इलेक्शन में 2/3 मेजॉरिटी से आपको अल्लाह ताला कामयाब करेगा। आपको क्या ज़रूरत है मार्च की? वो कौन सी वजूहत है, इसका फ़ायदा इसको होना है? कौन वो लोग हैं जो इस जगह तक इमरान खान साहब को बंद गली में धकेल रहे हैं? इसका फ़ायदा इमरान खान साहब को क्या होना है? स्टिंग और ट्रांसफ़र कोई भी हो, मुझे क्या फर्क पड़ता है? आज भाई ये तिक्का भाई है, कोई और दोस्त यहाँ खड़ा हुआ है, मुझे क्या फर्क पड़ता है किस चैनल से कौन आया है? मेरा आप प्रेस टॉक ले रहे हैं, कोई भी उसको रिपोर्ट कर दे। आर्मी को किसने चलाना है, IB को किसने चलाना है, पुलिस को किसने चलाना है, इससे मेरा क्या लुकआउट है? किसको बेनिफिट होना है? इन दे तारीख में क्या मकासद हैं? कौन हासिल करवाना चाह रहा है? ये कियोस क्यों क्रिएट हो रहा है? जो लीडरान सांप की सूरत में इमरान खान से लाखों लोग ले आएंगे, वो तो एक स्कूल की असेंबली के बच्चे भी नहीं जमा कर पा रहे। तो मैंने दोस्तों भी कहा था, 5000 दफा कहा था कि मेरे समेत कोई लीडर नहीं है इस पार्टी के अंदर,
ना लीडर बनने की कोशिश करे। ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग भी क्रिएट करी, उन सांप 3 सांप और 2 खास दिख रही, उसका खास बेनिफिट है, वो क्यों नहीं नजर आ रहा? बोल के चीज कि अब तो मैं निकाला भी गया हूँ, लेकिन क्या निकालने के बाद भी मेरा काम खत्म हो जाता? नहीं खत्म होता। मैं इमरान खान साहब के लिए काम कर रहा था, उनके विजन के लिए काम कर रहा था, और अब मैं समझता हूँ कि आइंदा इलेक्शन से पहले वो कई सांप और खास और कीड़ों को सफाया करना पड़ेगा सियासी तौर पे, क्यों गिर जाएगी। अब आप फवाद चौधरी मेरा दोस्त है, क्यों रखता है, खान साहब को सही बात बता सकता है, अब वो भी एक चीज को डिफेंड करने आया, वो डिफेंड झूठ में हो गया, उस झूठ के लिए आपको 2 झूठ बोलने पड़े, अब 4 झूठ बोलने पड़ेंगे, अब 6 झूठ बोलने की नहीं जरूरत आपको अल्लाह ताला ने अवाम के अंदर यहाँ इज्जत दी है, आपको क्या जरूरत? प्यार करती है तो छोटी चीज से मायूस और नाराज भी हो जाती है। बावड़ा साहब कौन सी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं? मैं पीडीएम भी नहीं ज्वाइन कर रहा, ना कोई पार्टी ज्वाइन कर रहा हूँ। अगर मेरा सियासी सफर इधर तक ही था तो इधर तक ही। वाडा साहब ये बयान कीजिएगा कि ये जो 190 मिलियन पाउंड 190 मिलियन पाउंड की जो आप बात कर रहे हैं, ये जियो टीवी ने सबसे पहले ब्रेक किया था इमरान खान के वज़ीर आज़म होते हुए। अब आप आके ये सारी चीज़ें इमरान खान बदयानती आपकी नीयत में शामिल नहीं है? मैंने तो इमरान खान साहब के लिए मेरे ख्याल से कोई भी ऐसा एक लफ्ज़ नहीं है जो इमरान खान साहब के लिए कहा हो। आपकी ज़रूर ख्वाहिश हो सकती है कि आप उसको रंग देना चाहें और स्पिन करना चाहें कि मैं इमरान खान साहब के खिलाफ खड़ा हो गया। मेरा उनका बड़ा प्यार और भरोसे का रिश्ता है, वो था, है और रहेगा। और जो 15 साल में मेरे इमरान खान साहब के बीच में जो भी बातें हुई हैं, जो भी चीज़ें हुई हैं, वो अमानतन मेरे साथ ही ज़िंदगी भर रहेंगी। मैंने वो काम करना है और ना मैं कोई बगावत करने जा रहा हूँ। मैं इमरान खान साहब जिस आइडियोलॉजी के तहत में आया था, जो उन्होंने मुझे सिखाया, मैं वही काम कर रहा हूँ। उन्होंने खुद ही कहा है कि हम कीड़े नहीं हैं, हमें अल्लाह ने पर दिया है तो मेरी परवाज़ है, तो मैं तो अपने चेयरमैन के विजन के ऊपर चल रहा हूँ। अच्छा फैसल साहब, ये बताइए कि इमरान खान साहब के ऊपर जो अटैक हुआ उससे पहले ही आप प्रिडिक्ट कर चुके थे राइटली। इमरान खान साहब चाह रहे हैं कि उसकी जो FIR है वो वज़ीर-ए-आज़म, वज़ीर-ए-दाख़िला के ऊपर भी कराई जाए। आप समझते हैं कि ये इक़दाम इमरान खान साहब का दुरुस्त है? जो तीनों अफराद हैं उनके ऊपर FIR होनी चाहिए, एक फरमा दें। इमरान खान साहब की स्ट्रैटेजी से सुलह के लिए भी आप कोशिशें कर रहे थे, वो कोशिशें किस नुक्ते पे आप आकर रुके? देखिए जी, जहाँ तक स्टैब्लिशमेंट का ताल्लुक है तो स्टैब्लिशमेंट के साथ ना वो कोई गैर आइनी हम डिमांड कर रहे थे, ना वो कोई गैर आइनी इक़दाम कर रहे थे। ठीक है, 2 इदारों का असर रसूख और इज़्ज़त है, एक सुप्रीम कोर्ट और एक फौज। उस असर रसूख से वो पॉलिटिकल पार्टियों के अंदर थे, उनसे वो कहा जा रहा था, लेकिन जब रात चीज़ सही हो जाती थी तो सुबह के दिन क्यों ख़राब हो जाती थी? कौन से वो लोग थे जो ये बात फीड करते थे, तब क्यों फीड करते थे कि चीज़ें ख़राब हो जाती थी? इसी तरीके जिस ISI के सीनियर ऑफिसर की बात आप कर रहे हैं, कहीं मीडिया बीट ना कर दे जनरल फैसल की, तो एक आप और उस अफसर, एक गैरतमंद अफसर है, एक आदमी, उसने अमन के लिए पाकिस्तान के हर जगह पे काम किया, चाहे वो कराची हो, चाहे वो बलूचिस्तान हो। और मैंने खान साहब को जाके ये बात कही और मैंने मशवरा दिया कि आप हर चीज़ को डायरेक्टली डील करें। आप लीडर हैं, आपको लोग प्यार करते हैं, तो जो लोग आपने सांप भेजे वो तो अपना रेज्यूमे लेके जा रहे हैं कि जी हमें वज़ीर आज़म बना दे और इमरान खान बुरा है। और वो मिसअंडरस्टैंडिंग मैंने क्लियर की। उन्होंने कहा ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने कहा सर मैं कल मुलाकात आपकी करवा देता हूँ। तो जब मैंने जनरल साहब से बात की तो उन्होंने मुझे कहा कि मेरी कमांड मुल्क में नहीं है, मेरे बॉसेस, मेरे पास अप्रूवल नहीं है। अब जब वो आ जाएंगे, अप्रूवल मिल जाएगी तो मैं मिल लूँगा। जी, मेरी बात ठीक है। मैंने ये बात इमरान खान साहब को जब सुबह जाके की कि उनके बॉसेस यहाँ मौजूद नहीं है, तो वो जब आ जाएंगे, उनको अप्रूवल मिल जाएगी तो आपसे मिल लेंगे। तो इमरान खान साहब को उससे पहले 2 खास में से एक खास ने फीड किया अपने खास मकासद के लिए, और उन्होंने मुझे कहा ये तो पार्टी तोड़ने आया, ये यूँ भी है, ये यूँ भी है, फलाना भी है, ढमाका भी है। तो मैंने खान साहब को कहा कि खान साहब आपको तो इतनी डिटेल्स पता ही नहीं होती, आप इन चीज़ों पर पढ़ते ही नहीं। हम तो उनको गाड़ी में लेके जब वज़ीर आज़म से पहले जाते थे तो हम खुद कहते थे सर इस दुकान में चले जाएं। तो आप तो ये भी नहीं पूछते थे दुकान में सिक्योरिटी क्या है, कौन बैठा हुआ है, क्या सस्ता आदमी है, मौला आदमी है, अल्लाह ताला के ऊपर अपना तवक्कुल रखने वाले आदमी है। ये सब फीड कौन दे रहा था? लड़ाई का पे फायदा क्या होना था?
जिसको फ़ायदा होना था और हमारी पार्टी में जिनको फ़ायदा होना था वो नाम आएंगे। और उसके बाद इन लोगों की बदौलत ये 2 खास और 3 सांप और कीड़ों की वजह से हमारे मुल्क को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, हमारे इदारों को नुकसान हुआ है, मेरी पार्टी को नुकसान हुआ है, मेरे चेयरमैन को नुकसान हुआ है। और उसके ऊपर सो मच सो के ताने बाने अरशद शरीफ के कत्ल से भी जाके मिल जाते हैं। दैट्स नॉट एक्सेप्टेबल। विल फाइट टिल द एंड। सामने आता है कि आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आपके खिलाफ पार्टी लेवल पे रहा है इस मामले में, क्या ये गलत फहमी की बुनियाद पे कार्रवाई थी जो पार्टी से निकालने का नोटिफिकेशन हुआ और आप इसको चले जा रहे हैं दूसरी, या आपने एक्सेप्ट कर लिया ये फैसला? और दूसरी बात ये है कि लॉन्ग मार्च के हवाले से अब क्या मालूमात है, क्या होने जा रहा है? देखिए जहाँ तक पार्टी का जो क्योंकि उसमें मेरे चेयरमैन इमरान खान साहब का आइन है टर्मिनेशन पे, तो मैं चेयरमैन साहब के फैसले को बैक कर इस्तकात नहीं है कि मैं उनके आगे उसको चैलेंज करूं या खड़ा हूं। चेयरमैन साहब का साइन हो गया, मुझे उन्होंने मेडल ईमानदारी का मैं एक्सेप्ट करता हूँ। उससे पहले जो मुझे नोटिस इशू हुआ था मैं जवाब दूँ तो वो अल्ले तरलों से तो मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी हाथ नहीं मिलाना, मैं कभी समझता रहा पार्टी में कुछ और आज भी कुछ नहीं समझता, तो मैंने जवाब देना मुनासिब नहीं समझा। इमरान खान साहब निकालने के बावजूद भी कभी ज़िंदगी में सवाल करेंगे, मैं हाजिर हूँ जवाब देने के लिए। उनको मेरी ज़रूरत आधी रात को अगर खुदा न खास्ता होगी तब भी मैं करूँगा। और कभी कभार आप ठीक काम करके निकल जाते हैं, 5-10 साल बाद आदमी को रियलाइज़ होता है कि उसने मेरे लिए सही किया था। जब रियलाइज़ अगर हुआ तो ठीक है, लेकिन मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी या कोई पीडीएम का हिस्सा बनने नहीं जा रहा। अच्छा, आप कहते हैं कि इमरान खान अपने जो करीबी लोग हैं उन पर जल्दी भरोसा कर जाते हैं? नहीं, मैं आपको उसका क्लियर कर दूँ। 4 वज़ीरों की भी मुलाकात हुई अपनी अपनी वजारत में, और उनमें से उमर अयूब साहब थे, चीफ ऑफ स्टाफ नईमुल हक साहब थे, मैं था, तीसरा एक कोई वज़ीर है जो मैं मिस आउट कर रहा हूँ, नाम में तो मैं गलत नाम दे दूँ तो डेलीगेशन था, शेख मखतूम हिज हाइनेस का डेलीगेशन था। उस डेलीगेशन के तहत हम मिले थे और पीएम ऑफिस से भी फ़ोन आया था कि अगर आपकी अवेलेबिलिटी डेलीगेशन देख लें। इस वक्त हुआ ना आज हुआ, और अगर वो इतना बुरा आदमी था उस टाइम पर और इतना बड़ा क्रिमिनल था तो फिर आईबी और बाकी एजेंसी को रोक लेना चाहिए था। तो फिर तो आप सवाल उनसे करें उस टाइम की। इमरान खान एक स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी है, उन्होंने 190 मिलियन पाउंड का जो फायदा दिया मलिक रियाज को, तो इमरान खान ने नहीं पूछा कि अलकादर यूनिवर्सिटी के लिए इतनी बड़ी ज़मीन मलिक रियाज ने क्यों दी, खैरात में दी, क्या हुआ? देखिए इमरान खान साहब को कारोबारी आदमी हिसाब से क्या वो भरोसा करते हैं, और 42 वज़ीर हैं उसका भी के अंदर, अगर 42 में से 2-3 ने रिजर्वेशन की और 39 ने उसको अप्रूव कर दिया तो फिर एडवाइज़र के कहने पे चलता है ना, और एडवाइज़र ही बड़े बड़ी सल्तने और बादशाह गिरवा देते हैं, वो कभी भी बादशाह खुद नहीं होता। इमरान खान साहब की एहलिया ने हीरो का हार कबूल किया था मलिक रियाज साहब से, तो आप समझते हैं कि उनकी एहलिया में कोई प्रॉब्लम है या इमरान खान साहब में कोई प्रॉब्लम है कि जो मलिक रियाज से हीरो? ऐसा देखिए इमरान खान साहब के साथ मेरा बड़ा इज्जत और है और रहेगा। मेरे लिए मुनासिब नहीं होगा कि मैं जिस पे मैं खुद भी आगे जाके शर्मिंदा हूँ। आप कहते हैं इमरान खान अपने लोगों पर बड़ी जल्दी भरोसा कर जाते हैं, आपने हमेशा उनको अच्छे मशवरे दिए, चीज़ों से आगाह भी उन्हें आपकी बातें नहीं मानी, क्या वो आप पर एतमाद नहीं करते थे? और दूसरा पीटीआई वाले इल्जाम लगाते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट के कहने में वो प्रेस क्लब वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस की, शुक्रिया, इसमें किस हद तक हकीकत है? देखिए जी, मुझे किसी ने मुझे ना कहा, मुझे एस्टेब्लिशमेंट क्या 2-3 चीज़ें इंसान को दे सकती है, पोजीशन देगी, वहाँ मैं जा नहीं रहा ना उन्होंने रब्ता किया है, पैसे की मुझे ज़रूरत नहीं है तो मैं क्यों करूँगा? मैंने ठीक काम किया और ठीक काम करता रहूँगा मैं। अभी आप किस स्टेज पे खड़े हैं? कितने ज़्यादा बहुत शुक्रिया हो गया।